लेविटिकस 16 चैप्टर, 17 चैप्टर, 18 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। थैंक यू अबा फादर गॉड, जब हम तेरे वचनों में पिता परमेश्वर बढ़ते जाते हैं, हमारा उजियाला बढ़ता जाता है, अज्ञानता दूर हो जाती है और हमारे अंदर परमेश्वर पिता तू जो रास्ता देना चाहता है वो रास्ता हम चल पाते हैं। तेरे सामर्थ के लिए धन्यवाद और पिता परमेश्वर ये वचन की गहरी दोस्ती के लिए धन्यवाद कि जिसके कारण पिता परमेश्वर हम तेरे संतान तेरे काम करने के लिए और तेरी योग्यता में होने के लिए, हमें तो अगुवाई में चलाने के लिए हमें परमेश्वर सहायता मिलती है। थैंक यू फादर गॉड। वचन की गहरी बातों में हमें, अगर तू चाहता है खुदा परमेश्वर, तो हमें इन सारी बातों को समझा, सीखा, इसके अंदर लिखी हुई व्यवस्था किस प्रकार से मनुष्य और परमेश्वर के बीच काम करता था, हमें सीखा, समझा और पिता इसके अंदर से हमारे जीवन के लिए लाभदायी हमें प्राप्त होने दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। लेविटिकस 16 chapter. How the high priest must enter into the holy place, the sin offering for himself, the sin offering for the people, the scapegoat, the yearly feast of the expiations. First verse. And the Lord spake unto Moses after the death of the two sons of Aaron, when they offered before the Lord and died. And the Lord said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil before the mercy seat which is upon the ark, that he die not, for I will appear in the cloud upon the mercy seat. Thus shall Aaron come into the holy place with a young bullock for a sin offering and a ram for a burnt offering. He shall put on the holy linen coat. And he shall have the linen breeches upon his flesh, and shall be girded with a linen girdle, and with the linen mitre shall he be attired. These are holy garments, therefore shall he wash his flesh in water, and so put them on. And he shall take off the congregation of the children of Israel 2 kids of the goats for a These are holy garments, therefore shall he wash his flesh in water, and so put them on. And he shall take off the congregation of the children of Israel 2 kids of the goats for a sin offering, and 1 ram for a burnt offering. And Aaron shall offer his bullock of the sin offering, which is for himself, and make an atonement for himself and for his house. And he shall take the 2 goats and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation. And Aaron shall cast lots upon the 2 goats, 1 lot for the Lord and the other lot for the scapegoat. And Aaron shall bring the goat upon which the Lord's lot fell, and offer him for a sin offering. But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord, to make an atonement with him, and to let him go for a scapegoat into the wilderness. And Aaron shall bring the bullock of the sin offering which is for himself, and shall make an atonement for himself and for his house, and shall kill the bullock of the sin offering which is for himself. And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the Lord, and his hands full of sweet incense beaten small, and bring it within the veil. And he shall put the incense upon the fire before the Lord, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is upon the testimony, that he die not. And he shall take off the blood of the bullock, and sprinkle it with his finger upon the mercy seat
eastward, and before the mercy seat shall be his sprinkle of the blood with his finger 7 times. Then shall he kill the goat of the sin offering that is for the people, and bring his blood within the veil, and do with that blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat and before the mercy seat. And he shall make an atonement for the holy place because of the uncleanness of the children of Israel, and because of their transgressions in all their sins. So shall he do for the tabernacle of the congregation that remaineth among them in the midst of their uncleanness. And there shall be no man in the tabernacle of the congregation when he goeth in to make an atonement in the holy place, until he come out and have made an atonement for himself and for his household and for all the congregation of Israel. And he shall go out unto the altar that is before the Lord, and make an atonement for it, and shall take of the blood of the bullock and of the blood of the goat, and put it upon the horns of the altar round about. And he shall sprinkle of the blood upon it with his finger 7 times, and cleanse it and hallow it from the uncleanness of the children of Israel. And when he hath made an end of reconciling the holy place, and the tabernacle of the congregation, and the altar, he shall bring the live goat, and Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness. And Aaron shall come into the tabernacle of the congregation, and shall put off the linen garments which he put on when he went into the holy place, and shall leave them there. And he shall wash his flesh with water in the holy place, and put on his garments, and come forth and offer his burnt offering and the burnt offering of the people, and make an atonement for himself and for the people. And the fat of the sin offering shall he burn upon the altar. And he that let go the goat for the scapegoat shall wash his clothes and bathe his flesh in water, and afterward come into the camp. And the bullock for the sin offering and the goat for the sin offering, whose blood was brought in to make atonement in the holy place, shall one carry forth without the camp. And they shall burn in the fire their skins and their flesh and their dung. And he that burneth them shall wash his clothes and bathe his flesh in water, and afterward he shall come into the camp. And this shall be a statute forever unto you, that in the 7th month, on the 10th day of the month, ye shall afflict your souls, and do no work at all, whether it be one of your own country, or a stranger that sojourneth among you. For on that day shall the priest make an atonement for you to cleanse you, that ye may be clean from all your sins before the Lord. It shall be a Sabbath of rest unto you, and ye shall afflict your souls by a statute forever. And the priest whom ye shall anoint, and whom ye shall consecrate to minister in the priest's office in his father's stead, shall make the atonement, and shall put on the linen clothes, even the holy garments, and he shall make an atonement for the holy sanctuary, and he shall make an atonement for the tabernacle of the congregation and for the altar, and he shall make an atonement for the priests and for all the people of the congregation. And this shall be an everlasting statute unto you, to make an atonement for the children of Israel for all their sins once a year. And he did as the Lord commanded Moses.
Chapter 17. Blood of beasts must be offered at the tabernacle door, eating of blood forbidden. First verse. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto Aaron and unto his sons and unto all the children of Israel, and say unto them, This is the thing which the Lord hath commanded, saying, What man soever there be of the house of Israel that killeth an ox or a lamb or goat in the camp, or that killeth it out of the camp, and bringeth it not unto the door of the tabernacle of the congregation to offer an offering unto the Lord before the tabernacle of the Lord, blood shall be imputed unto that man. He hath shed blood, and that man shall be cut off from among his people, to the end that the children of Israel may bring their sacrifices which they offer in the open field, even that they may bring them unto the Lord unto the door of the tabernacle of the congregation unto the priest, and offer them for peace offerings unto the Lord. And the priest shall sprinkle the blood upon the altar of the Lord at the door of the tabernacle of the congregation, and burn the fat for a sweet savour unto the Lord. And they shall no more offer their sacrifices unto devils, after whom they have gone a warring. This shall be a statute forever unto them throughout their generations. And thou shalt say unto them, Whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers which sojourn among you, that offereth a burnt offering or sacrifice, and bringeth it not unto the door of the tabernacle of the congregation, to offer it unto the Lord, even that man shall be cut off from among his people. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls, for it is the blood that maketh an atonement for the soul. Therefore I said unto the children of Israel, No soul of you shall eat blood, neither shall any stranger that sojourneth among you eat blood. And whatsoever man there be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn among you, which hunteth and catcheth any beast of fowl that may be eaten, he shall even pour out the blood thereof, and cover it with dust. For it is the life of all flesh. The blood of it is for the life thereof. Therefore I said unto the children of Israel, Ye shall eat the blood of no manner of flesh, for the life of all flesh is the blood thereof. Whosoever eateth it shall be cut off. And every soul that eateth that which died of itself, or that which was torn with beasts, whether it be one of your own country or a stranger, he shall both wash his clothes and bathe himself in water, and be unclean until the even. Then shall he be clean. But if he wash them not, nor bathe his flesh, then he shall bear his iniquity. Chapter 18. Unlawful marriages, unlawful lusts. First verse. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, I am the Lord your God. After the doings of the land of Egypt, wherein ye dwelt, shall ye not do, and after the doings of the land of Canaan, whither I bring you, shall ye not do, neither shall ye walk in their ordinances. Ye shall do my judgments, and keep mine ordinances to walk therein. I am the Lord your God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. फोर्थ वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे, तब ध्यान देना.
Ye shall do my judgments and keep mine ordinances to walk therein. I am the Lord your God. Ye shall therefore keep my statutes and my judgments, which if a man do, he shall live in them. I am the Lord. None of you shall approach to any that is near of kin to him to uncover their nakedness. I am the Lord. The nakedness of thy father or the nakedness of thy mother shalt thou not uncover. She is thy mother. Thou shalt not uncover her nakedness. The nakedness of thy father's wife shalt thou not uncover. It is thy father's nakedness, the nakedness of thy sister, the daughter of thy father, or daughter of thy mother, whether she be born at home or born abroad, even their nakedness thou shalt not uncover. The nakedness of thy son's daughter or of thy daughter's daughter, even their nakedness thou shalt not uncover, for theirs is thine own nakedness. The nakedness of thy father's wife's daughter, begotten of thy father, she is thy sister. Thou shalt not uncover her nakedness. Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister, she is thy father's near kinswoman. Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister, for she is thy mother's near kinswoman. Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's brother. Thou shalt not approach at his wife, she is thine aunt. Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter in law, she is thy son's wife. Thou shalt not uncover her nakedness. Thou shalt not uncover the nakedness of thy brother's wife, it is thy brother's nakedness. Thou shalt not uncover the nakedness of a woman and her daughter, neither shalt thou take her son's daughter or her daughter's daughter to uncover her nakedness, for they are her near kinswoman. It is wickedness. Hallelujah. It is wickedness. Neither shalt thou take a wife to her sister to vex her, to uncover her nakedness, beside the other in her lifetime. Also thou shalt not approach unto a woman to uncover her nakedness as long as she is put apart for her uncleanness. Moreover, thou shalt not lie carnally with thy neighbor's wife to defile thyself with her, and thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech. Neither shalt thou profane the name of thy God. I am the Lord. Thou shalt not lie with mankind, as with womankind, it is abomination. Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith, neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto. It is confusion. Defile not ye yourselves in any of these things, for in all this the nations are defiled, which I cast out before you, and the land is defiled. Therefore I do visit the iniquity thereof upon it, and the land itself vomiteth out her inhabitants. Ye shall therefore keep my statutes and my judgments, and shall not commit any of these abominations, neither any of your own nation, nor any stranger that sojourneth among you. For all these abominations have the men of the land done, which were before you, and the land is defiled, that the land spew not you out also, when ye defile it as it spewed out the nations that were before you. Okay, okay. 27, 28, 26, 25, 24.
For whosoever shall commit any of these abominations, even the souls that commit them shall be cut off from among their people. Therefore shall ye keep mine ordinance, that ye commit not any one of these abominable customs which were committed before you, and that ye defile not yourselves therein. I am the Lord your God. लैव्य व्यवस्था 16 अध्याय 17 अध्याय 18 अध्याय हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, हिंदी में BSI बाइबल में से। प्रायश्चित का दिन। जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की, और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहे कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जंघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र है, और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। फिर वह इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए एक मेढ़ा ले, और हारून और उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा फिर वह इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए एक मेढ़ा ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए, और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से अपने उसने किया था ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और वह इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है उसके लिए भी वह वैसा ही करे। जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इस्राएल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर न निकले तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में न रहे। फिर वह निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाए,
और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे। प्रायश्चित का बकरा 20 वचन से आगे। जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा। इसीलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए और जिस सनी के वस्त्रों को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था, उन्हें उतार कर वहीं पर रख दे। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहन ले और बाहर जाकर अपने होम बलि और साधारण जनता के होम बलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करे और पाप बलि की चर्बी को वह वेदी पर जलाए। और जो मनुष्य बकरे को अजाजेल के लिए छोड़कर आए, वह भी अपने वस्त्र को धोए और जल से स्नान करे, तब वह छावनी में प्रवेश करे। और पाप बलि का बछड़ा और पाप बलि का बकरा भी जिनका लहू पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने के लिए पहुंचाया जाए, वे दोनों छावनी से बाहर पहुंचाए जाए और उनका चमड़ा, मांस और गोबर आग में जला दिया जाए। और जो उनको जलाए वह अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और इसके बाद वह छावनी में प्रवेश करने पाए। प्रायश्चित का दिन मानना 29 वचन से आगे। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज न करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना, यह सदा की विधि है। और जिसका अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किया जाए, वह याजक प्रायश्चित किया करे, अर्थात वह सनी के पवित्र वस्त्रों को पहनकर पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करे और याजकों के और मंडली के साथ लोगों के लिए भी प्रायश्चित करे। और यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इस्राएलियों के लिए प्रति वर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी। हारून ने किया। लहू की पवित्रता 17 अध्याय पहले वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और सब इस्राएलियों से कहे कि यहोवा ने यह आज्ञा दी है, इस्राएल के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल या भेड़ के बच्चे या बकरी को चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर घात करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त न ले जाए, तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा, और वह मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा वह अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। इस विधि का यह कारण है कि इस्राएली अपने बलिदान जिनको वे खुले मैदान में वध करते हैं, वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेल बलि करके बलिदान किया करे। और याजक लहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं
को उनके लिए बलिदान न करे। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। 8 वचन से आगे, तो उनसे कहे कि इस्राएल के घराने की लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो होम बलि या मेल बलि चढ़ाए और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को न ले आए, वह मनुष्य अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। फिर इस्राएल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लहू न खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लहू कभी न खाए। इस्राएलियों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो आहेर करके खाने के योग्य पशु या पक्षी को पकड़े, वह उसके लहू को उंडेल कर धूलि से ढांप दे, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। उसीलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। जो कोई उसको खाए वह नष्ट किया जाएगा, और चाहे वह देशी हो या परदेशी हो। जो कोई किसी लोथ या फाड़े हुए पशु का मांस खाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब वह शुद्ध होगा। परंतु यदि वह उनको न धोए और न स्नान करे तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। वर्जित यौन संबंध 18 अध्याय पहले वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ तो न करना, और न उन देशों के विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण आशीषित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। छह वचन। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबिनी का तन उघाड़ने को उसके पास न जाए। मैं यहोवा हूँ। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है न उघाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन न उघाड़ना, यह तो तुम्हारे पिता के ही का तन है। अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन न उघाड़ना। अपनी पोती या अपनी नतीनी का तन न उघाड़ना। उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन न उघाड़ना। अपनी फूफी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारी पिता की निकट कुटुंबिनी है। अपनी मौसी का तन न उघाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारे माता की निकट कुटुंबिनी है। अपने चाचा का तन न उघाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी भौजी का तुम तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई ही का तन है।
किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन न उघाड़ना, और उसकी पोती को या उसकी नतिनी को अपनी स्त्री करके उसका तन न उघाड़ना, वे तो निकट कुटुंबिनी है, ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत न करना, कि पहली के जीवित रहते हुए उसका तन भी उघाड़े। फिर जब तक कोई स्त्री ऋतु के कारण अशुद्ध रहे, तब तक उसके पास उसका तन उघाड़ने को न जाना। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध न हो जाना। अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चढ़ाना, और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मैं यहोवा हूँ। स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन न करना, वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध न हो जाना, और कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। हालेलुया, ओ माय गॉड। ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध न हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ, वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई है। हालेलुया। यानी परमेश्वर इससे वाकिफ है कि ये सब ऐसे ऐसे काम लोग कर रहे। हालेलुया। ओके, तो हम लोग कोई अजनबी नहीं है इन बातों के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी जाति रह चुकी है जो ऐसे ऐसे काम कर चुके हैं। हालेलुया। लॉर्ड हेल्प अस फादर। और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है, इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ, और वह देश अपने निवासियों को गल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी, चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाले परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम न करे, क्योंकि ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य जो तुमसे पहले उसमें रहते थे, वे करते आए हैं। इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। अब ऐसा न हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी, उसको उसने उगल दिया, और उसी रीति जब तुम उसकी उसे अशुद्ध करो, तो वह तुमको भी उगल दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करे, वे सब प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किए जाए। यह आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है, उसे तुम मानना, और जो घिनौने रीतियां तुमसे पहले प्रचलित है, उनमें से किसी पर न चलना, और न उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हम इन कोई भी हिस्से में अपने आप को देना नहीं चाहते हैं खुदा। हमारे अंदर से पिता, हम जो भी देखते हैं, जो भी चलते हैं, जो भी पिता हमारे अंदर से, हम जहाँ कहीं पर भी अकेले में पिता, वेरी पर्सनल माइंड में भी अगर हम कुछ है खुदा, तो हम तेरा भय आगे रखते हैं खुदा परमेश्वर। हम जानते हैं तो धन्य परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, और हमें सच्चाई में लेकर चलने वाला परमेश्वर है। हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 20 चैप्टर 1 वर्स से 12 वर्स, सैम्स 31 चैप्टर 32 चैप्टर। एक्ट्स प्रेरितों के काम 20 अध्याय 1 वचन से 12 वचन, भजन संहिता 31 अध्याय 32 अध्याय। हम पढ़ेंगे अकेले में, हाँ,
पर्सनल व्यक्तिगत समय में, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करे, हमारे सोच विचार कल्पनाओं में वो चेंजेस लाए और हमारे स्वभाव बदल दे, हमारे गुण बदल दे, और इसके कारण ही हम परमेश्वर चाहता है उस मर्जी को हम कर सकते हैं, और परमेश्वर की मर्जी हमको एकदम स्पष्ट रीति से समझ भी सकती है। ज़रूरी नहीं सभी ने अकेले में पर्सनल टाइम, व्यक्तिगत समय में इन बाइबल रीडिंग को करना है। आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए। केवल परमेश्वर के आत्मा ही के द्वारा अपने ध्यान रखना है कि ये सफ़र व्यर्थ ना जाए। परमेश्वर के आत्मा का हमने लाभ उठाना है। वह जो सिखाता है, समझाता है, हमने उसे ग्रहण करना है और निश्चित यही करना है कि परमेश्वर का आत्मा का हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में ईश्वरीय रचना डिवाइन। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।